Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel, Dr. Aman's video. Today we are going to discuss bioethics in assisted reproductive technologies. थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो है कलेक्टिवली हर उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो असिस्टेंस देती है, जो हेल्प प्रोवाइड करती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. तो कॉमनली दोज टेक्नोलॉजीज़ आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अगेन, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि जो कंसीव करने में या इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने में जो हेल्प प्रोवाइड करती है, या सारी वो टेक्नोलॉजीज़ जो इनफर्टिलिटी को एड्रेस करती है, तो ऑल दोज टेक्नोलॉजीज़ आर कलेक्टिवली नोन एज assisted reproductive technology because they provide assistance in the reproductions in the human reproduction. These are some definition हम read out करते हैं जो मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से और रिसर्च पेपर से उठाई है. ART include medical procedure used primarily to address infertility, or you can say ART refer to treatment and procedure that aim to achieve pregnancy. वही बात है. The term ART used to describe collectively a number of non-causal methods of conceptions that are used to treat infertility with donor or non-donor egg and sperm. थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि what do we mean by collectively a number of non-causal method. Non-causal method कहते हैं उन सारे मेथड्स को जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व नहीं होता. दीज आर द टेक्नोलॉजीज which assist in human reproduction without non-causal method, यानी कि without sexual intercourse, that are used of course to treat infertility. उसमें हम डोनर से एग्स भी ले सकते हैं, डोनर से स्पर्म्स भी ले सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. The use of technology to assist human reproduction in the treatment of infertility is known as assisted reproductive technology. तो ये कुछ definition थी जो मैंने आपके सामने रख दी. Assisted reproductive technology refer to a number of techniques. हम primarily इसमें से कुछ most common technique को discuss करेंगे. In vitro fertilization, in which fertilization of egg and sperm takes place in a laboratory setting. As I told you कि mostly these are non-causal methods, यानी कि these are the methods of conceiving, these are the method of conceiving without sexual intercourse. तो हम in vitro fertilization में क्या करते हैं कि eggs और sperms जो हैं उसकी fertilization करवाते हैं laboratory setting में. Therefore it is known as in vitro fertilization, यानी कि fertilization on the bench of laboratory. Intracytoplasmic sperm injection is a method in which a single sperm is introduced into the egg to be fertilized, again in a laboratory setting without sexual intercourse. Artificial insemination, which involve artificially delivering semen to the female genital tract. The semen may be from the woman's own partner or from a donor. ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन सिचुएशंस को. Gamete intrafallopian tube transfer, which involve removing eggs laparoscopically after controlled ovarian hyperstimulation, followed by introduction of the mixture of the couple eggs and sperm into the fallopian tube so that fertilization occur in the body. यानी कि हम पहले फीमेल से एग्स हार्वेस्ट करते हैं और फिर जो उसका मेल पार्टनर होता है उससे स्पर्म लेते हैं, इनको बाहर आउटसाइड द बॉडी मिक्स करते हैं और फिर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है हम ये फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करते हैं और फिर हम उसको छोड़ते हैं कि बॉडी में ख़ुद फर्टिलाइजेशन हो जाए. जो ART है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, तो इट इज़ डिफ़र फ्रॉम स्टैंडर्ड मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं तो ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है. कैसे? There are two significant respects in which assisted reproductive technologies differ from standard medical treatment. उसमें से एक ये है कि ART जो है it does not treat the biological problem that give rise to infertility. ठीक है, ये इस प्रॉब्लम को ट्रीट तो नहीं करता बल्कि उसको सरकमवेंट करता है, उसको कवर अप करता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इट मेक यू एबल
टू रिप्रोड्यूस। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है इस तरह से, इट्स सर्कमवेंट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मोस्ट ART ऑफर वेज टू क्रिएट चिल्ड्रन डिस्पाइट अंडरलाइन फर्टिलिटी प्रॉब्लम। दूसरा रिस्पेक्ट ये है कि ART जो है समटाइम्स रिक्वायर यूज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि जैसे आपको स्पर्म चाहिए होता है डोनर से, एग चाहिए होता है डोनर से, या वोम चाहिए होता है जेस्टेशन के लिए फ्रॉम थर्ड पार्टीज़, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, हु आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले अ रोल इन द रेजिंग द रिजल्टिंग चाइल्ड। यानी कि जो बंदा स्पर्म डोनेट कर दे या एग डोनेट कर दे तो वो फिर जो चाइल्ड पैदा होता है तो उसकी परवरिश में उसका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ स्पर्म डोनेट करता है किसी दूसरे कपल को। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। So there are two types of assistance in reproduction. One is two-party assisted reproduction and the other is three-party assisted reproduction. Two-party assisted reproduction का मतलब ये है कि दो पार्टनर है, यानी कि एक कपल है या एक कपल है, मेल फीमेल हेट्रोजाइगस कपल है, और उनको असिस्टेंस चाहिए रिप्रोडक्शन में। तो दिस टाइप ऑफ असिस्टेंस इज नोन एज टू पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन। द थ्री प्राइमरी मीन्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, सबसे पहले मेडिकेशन है कि उनको इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं कि वुमेन जो है इट इंक्रीज द वुमेन चांसेस टू कंसीव। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया। IVF जो है इट इज़ द मोस्ट नोन मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन और इट हैज़ अ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस अक्रॉस द ग्लोब। IVF में हम क्या करते हैं कि वुमेन टेक्स फर्टिलिटी ड्रग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एग्स, देन फिजिशियन क्या करता है कि ही और शी रिट्रीव वन और मोर एग्स बाय लेप्रोस्कोपी और थ्रू ए नीडल। उसके बाद जो है द पार्टनर स्पर्म इज देन मिक्स विद द एग्स इन अ पेट्री डिश ऑन द बेंच ऑफ लेबोरेटरी एंड फर्टिलाइजेशन में टेक्स प्लेस। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है तो उस एम्ब्रियो को फिर दोबारा इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में, ठीक है, वॉर्म ऑफ द मदर में। दूसरी चीज़ ये है कि टू पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन में जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजर्शन है, इसमें हम क्या करते हैं कि वी इंजेक्ट सिंगल स्पर्म इनटू द एग ऑफ द वुमेन और इट कैन बी कम्बाइन विद IVF टेक्नोलॉजी टू हेल्प मैन विद लो स्पर्म काउंट कंट्रीब्यूट जेनेटिकली टू अ चाइल्ड। अच्छा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स जो है मोस्टली वहाँ यूज़ होता है कि जो मेल जो है उनका स्पर्म काउंट कम होता है और वो इतने स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते कि वो फेलोपियन ट्यूब पहुँचे और वहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में सिंगल स्पर्म्स जो हैं वो वुमेन के एग्स में इंजेक्ट किया जाता है और फिर IVF की तरह इन विट्रो उसकी फर्टिलाइजेशन की जाती है। और जब एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है तो फिर एम्ब्रियो जो है इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन द एम्ब्रियो इज अलाउड टू डेवलप आउटसाइड द वॉर्म फॉर अ फ्यू डेज and is then implanted into the lining of the woman uterus with a small plastic tube। फिर उसी को, तो ये भी असिस्टेंस है रिप्रोडक्शन में इन केस ऑफ टू पार्टी। ठीक है, जो इथिकल इश्यूज है असिस्टेड रिप्रोडक्शन में, सो एज IVF इज़ द मोस्ट कॉमनली technology used for assistance in two-party reproduction, so it has a wide acceptance across the globe, but still there are some vexing questions, there are some frustrating questions concerning embryo creations, selection and dispositions. जो patients हैं तो they reduce their cost by fertilizing many egg at once and implanting several embryo into the hope that at least one will be created to term। इसका मतलब ये है कि चूँकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे कॉस्ट आती है तो कॉस्ट इफ़ेक्ट करने के लिए यूजुअली जो पेशेंट्स हैं वो ये करते हैं कि वो मैनी एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज़ कराते हैं इन ऑर्डर टू सेव द कॉस्ट, कि अगर एक एग्स और एग स्पर्म हम कराएंगे, अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन ना हुई तो आपको दोबारा शुरू से प्रोसेस जो है उसका कॉस्ट अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉस्ट को कम करने के लिए मैनी एग्स जो है उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है और फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक एम्ब्रियो की बजाय 3-4 एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं यूट्रस ऑफ द वुमेन में, ताकि अगर एक एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियो ज़ाया होंगे तो एक एटलीस्ट 1 एम्ब्रियो जो है वो तो अपने टर्म्स तक पहुंच जाएगा, यानी कि बर्थ तक वो पहुंच जाएगा।
तो इसलिए जो एम्ब्रियो क्रिएशन है कि कितने एम्ब्रियो बनाए जाएं, सिलेक्शन जो है और उसकी जो डिस्पोजिशन है कि जो बच जाते हैं, तो इस पे कुछ इथिकल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल IVF प्रैक्टिस रेज क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी एम्ब्रियोज शुड बी क्रिएटेड एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। अब इट इज़ एन एथिकल क्वेश्चंस। what to do when couple disagree on disposition of unused embryo। हो सकता है कि एक कपल था, उसने एक एम्ब्रियो इम्प्लांट किया और वो टर्म्स तक पहुंच गया, तो जो बाकी बचे हुए एम्ब्रियो थे, अगर जो कपल है वो एग्री नहीं है उसके डिस्पोजिशन के लिए, तो फिर ऐसे में क्या एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी होगी इस कंडीशन में। when or whether it is appropriate to use pre-implementation genetic diagnosis as a mean of selecting characteristics of the embryo to implant। अब ये पॉसिबल है कि जब एम्ब्रियो तैयार हो जाए तो एम्ब्रियो सेलेक्ट करने के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप प्री इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले, इम्प्लांट करने से पहले आप उसकी जेनेटिक डायग्नोसिस कर लें, और वहाँ से आपको फिर पता चलता है कि इस एम्ब्रियो से जो बच्चा पैदा होगा उसका आई कलर ऐसा होगा, उसकी हाइट इतनी होगी, उसमें ब्लू हेयर कलर ऐसा होगा, तो आप अपनी मर्ज़ी का एम्ब्रियो जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे भी कुछ एथिकल रिजर्वेशन है लोगों को कि जो सिलेक्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्ब्रियो टू इम्प्लांट, कि इसकी एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है और कैसी है। तो दीज आर सर्टेन एथिकल क्वेश्चंस अबाउट द embryo creation, selection and disposition। IVF performed using a gamete of a married couple is available in Pakistan and has religious and legal sanctions। पाकिस्तान में इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर शादीशुदा जोड़ा जो है अपने स्पर्म्स और अपने एग से जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना चाहता है तो फिर वो लीगल भी है और उसके लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन जो है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो जो है एक कपल है या सेम सेक्स कपल है या हेट्रोसेक्सुअल कपल है, यानी कि दोनों एक जैसे हैं, और वो जो है अपने बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो फिर थर्ड पार्टी से हेल्प लेते हैं, किसी और पार्टी से हेल्प लेते हैं। तो इसलिए इस तरह की रिप्रोडक्शन को फिर हम थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ART आर इंक्रीजिंगली sought by those who cannot reproduce only their own genetic and biological capabilities या कैपेसिटीज़, यानी कि अपनी बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़ यूज़ करते हुए वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हेट्रोसेक्सुअल and same-sex couple and single women and men who seeks to have biologically connected children frequently turn to clinic and agencies for donor who provide sperms, eggs and gestational services। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई हेट्रोसेक्सुअल कपल है और उस हेट्रोसेक्सुअल कपल का मतलब ये है कि एक मेल है और एक फ़ीमेल है, तो उसमें हो सकता है कि मेल जो है वो फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही या मेल जो है वो बिल्कुल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में फिर उन्हें थर्ड पार्टी की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि डोनर से या स्पर्म चाहिए होंगे या एग चाहिए होंगे। या फॉर एग्जांपल सेम सेक्स कपल है, दोनों गेज हैं या दोनों लेस्बियन हैं, तो वहाँ पे भी उनको थर्ड पार्टी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। या सिंगल वुमेन है, एक सिंगल वुमेन है एंड शी वांट अ बेबी विच इज़ जेनेटिकली कनेक्टेड टू हर, तो वहाँ पे भी उसे डोनर स्पर्म की ज़रूरत होगी। या सिंगल मैन है, वो चाहता है कि उसे जो है अपना ही वांट अ चाइल्ड, तो बायोलॉजिकली कनेक्टेड चाइल्ड का मतलब ये है कि वो उसके अपने स्पर्म से या अपने एग से बना हो, विच इज़ बायोलॉजिकली कनेक्टेड। तो अगर सिंगल मैन है वो चाहता है, तो ऐसे में उसे एग की डोनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ उसे जेस्टेशनल सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि जब इन विट्रो वो एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो को जेस्टेशन प्रोवाइड करने के लिए 9 मंथ जेस्टेशन प्रोवाइड करने के लिए उसे जेस्टेशन सर्विस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सारे कंडीशंस को हम थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन, मैंने पहले डिस्कस भी किए, जैसे फॉर एग्जांपल डोनर एग्स नीडेड फॉर वुमेन हु डिस्कवर्ड दैट दे कुड नॉट अचीव प्रेगनेंसी यूजिंग देयर ओन एग्स, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। डोनर स्पर्म्स आर नीडेड बाय दोज हु कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म एट ऑल
as well as by lesbian couple and single women seeking a child genetically connected to at least one rearing parent. तो ऐसी सूरत हाल में भी उन्हें थर्ड पार्टी की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जो तीसरा फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन, मोस्ट कंट्रोवर्शियल फॉर्म भी जो है वो है सरोगेट और कॉन्ट्रैक्ट मदरहुड। जैसे मैंने थोड़ा सा अभी डिस्कस भी किया कि फॉर एग्जांपल एक मैन है और वो सिंगल मैन है और उसे बायोलॉजिकली कनेक्टेड चाइल्ड चाहिए, तो एक तो उसे एग की डोनेशन मिल जाएगी। एग की डोनेशन के साथ साथ जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो पैदा होगा तो उसको 9 मंथ जेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यूट्रस हायर करना पड़ेगा या खैर सगाली के थ्रू किसी से ये बात करनी पड़ेगी कि वो फिर 9 मंथ जेस्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करेगी उस एम्ब्रियो को। तो इस कंडीशन को सरोगेट मदर या कॉन्ट्रैक्ट मदर कहते हैं या इसको सरोगेसी भी कहते हैं। तो सरोगेसी जो है इट इज़ आल्सो अ थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वो है फॉर्म है थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन का। Surrogacy जो है it is typically employed by heterosexual couple in which the woman can produce her own eggs but cannot carry a pregnancy to them, pregnancy to terms। एक तो सरोगेसी वो लोग यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कपल है हेटरोसेक्सुअल मेल फीमेल है, वो दोनों नॉर्मल है, स्पर्म भी पैदा कर सकते हैं, एग भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रेगनेंसी है वो अपने टर्म तक नहीं पहुंचती, मिस कैरेज होता है। तो ऐसे में उसको जेस्टेशनल सर्विस जो है वो हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मदरहुड या सरोगेट मदरहुड जो है वो हायर करते हैं ओनली फॉर जेस्टेशनल सर्विसेज। या फिर उस पर क्या द पार्टनर जो है ऑफ कोर्स दे कॉन्टैक्ट विद अ वुमेन टू कैरी द फीटस फ्रॉम देयर गैमीट्स, यानी कि उनके गैमीट्स से जो फीटस बनता है वो सिर्फ उसको जेस्टेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है। कुछ हेट्रोसेक्सुअल कपल या सिंगल मैन या गे मेल कपल्स जो है अचीव्ड पेरेंटहुड यूजिंग द सर्विसेज ऑफ अ वुमेन who provide both egg and gestation and then surrender the baby upon birth to those who intending to raise the child। कुछ हेट्रोसेक्सुअल कपल जिस तरह मैंने आपको बताया भी ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हेट्रोसेक्सुअल कपल है, मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहा है लेकिन फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो वो फिर दूसरे वुमेन से एग भी डोनर में लेते हैं, ठीक है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद जो फीटस है वो उसके यूट्रस में इम्प्लांट करवाते हैं और 9 मंथ तक उसने जेस्टेशनल सर्विसेज भी लेते हैं उस वुमेन से। और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद वो औरत जो है वो बच्चा सरेंडर करती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है सिर्फ जेस्टेशनल सर्विसेज के लिए। या फॉर एग्जांपल सिंगल मैन है जैसे मैंने आपको बताया, या गे मेल कपल जो है, तो इस तरह से वो पेरेंटहुड हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो वालिदैन बन जाते हैं, पेरेंट बन जाते हैं विद देयर बायोलॉजिकल कनेक्टेड चिल्ड्रन। इथिकल इशू जो है थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन में, सो ART circumvent infertility have rapidly pushed the ethical boundaries in many parts of the world and the entire concept of the normal family now stand challenged। यानी कि जो नॉर्मल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आज भी दुनिया के बहुत सारे कोनों में एक औरत और एक मर्द को ही माँ बाप माना जाता है किसी बच्चे के लिए, तो ये नॉर्मल फैमिली का कॉन्सेप्ट है जो आजकल थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन ने बिल्कुल इस नॉर्मल फैमिली कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया है, ठीक है। क्यों चैलेंज कर दिया है? क्योंकि अब टेक्निकली ये पॉसिबल है कि एक बेबी जो है उसके 5 पेरेंट्स हों एक साथ। फॉर एग्जांपल एक स्पर्म डोनर आता है, वो स्पर्म डोनेट करता है, दूसरा आता है फीमेल, वो एग डोनेट करती है, और ये स्पर्म और एग जो है इसको इन विट्रो फर्टिलाइज किया जाता है और जो एम्ब्रियो बनता है उसको तीसरी औरत के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। वो एज अ सरोगेट मदर उसको सिर्फ 9 मंथ जेस्टेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बाद में पता चलता है कि इन तीनों को, स्पर्म डोनर को, एग डोनर को और सरोगेट मदर को, दूसरे 2 इंडिविजुअल थे और उन्होंने इसको हायर किया था इस सारे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो टोटल क्या हुए, 5 जो मेंबर्स थे वो पेरेंट बन सकते हैं। इसी तरह 3 पेरेंट भी हो सकते हैं एक बेबी के। तो जो नॉर्मल फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो इस थर्ड पार्टी असिस्टेड ने चैलेंज कर दिया है, क्योंकि नाउ इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू हैव बेबी
एज इट इज़ फॉर सेम सेक्स कपल, जिस तरह सेम सेक्स कपल जो हैं अब वो भी बच्चे रख सकते हैं। तो जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है नॉर्मल फैमिली का, वो चैलेंज हो गया है थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन की वजह से। इथिकल, लीगल एंड मॉरल डिबेट्स हैव revolved around trying to define parenthood in some such circumstances। जो इशू है वो ये है कि ऐसे circumstances में जहाँ 5 लोग पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, 3 लोग पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे circumstances में पेरेंटहुड जो है उसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कैसे तयन किया जा सकता है, उनकी ऑब्लिगेशंस का कैसे तयन किया जा सकता है, उनके हक का कैसे तयन किया जा सकता है। तो ये सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं जो थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन की वजह से रेज हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चैलेंजिंग सिचुएशन का जिक्र करते हैं कि एक कपल है और वो ये सारा प्रोसेस इनिशिएट करता है, वो स्पर्म डोनर हायर करते हैं, स्पर्म एग डोनर हायर करते हैं, जस्टेशन के लिए किसी वुमेन को हायर करते हैं, और बच्चा जो है वो जस्टेशन प्रोसेस में है। और मीनवाइल वो जो जिस कपल ने ये तीनों को हायर किया था, उन कपल के आपस में इख्तिलाफात आते हैं और वो फ़ैसला करता है कि वो अलग अलग रहना चाहते हैं और अब उन्हें बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में इस बच्चे का क्या फ़ैसला होगा, ये बच्चा कौन पालेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। इस तरह बहुत सारे और सर्कमस्टांसिस हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि इन वेदर द बेबी बोर्न आउट ऑफ सच अ कम्बिनेशन हैज़ अ राइट टू नो हिज और हर ओन बायोलॉजिकल पेरेंट। यानी कि इस कंडीशन में जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो कल बड़ा हो के अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जानना चाहता है कि मैं नस्ब के तौर से यानी कि मैं बायोलॉजिकली किसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो क्या ये जानना उसका हक होगा या ये स्पर्म डोनर और एग डोनर जो है ये एनोनिमस रखे जाएंगे। तो ये सारी जो इथिकल इश्यूज़ हैं उसके साथ थर्ड पार्टी असिस्टेंस के साथ, तो ये पूरी दुनिया में डिबेटेबल है और इनकी इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी अभी कुछ कंट्रीज़ में डिसाइड हो गई हैं, कुछ सोसाइटी स्टिल अभी इसको डिबेट में डिस्कस कर रही है। Recruiting and hiring of a woman who will gestate children for pay and then turn them over to other has occasioned intense legal and ethical controversy। ये भी एक controversy है कि जो पुअर वुमेन है यूजुअली अक्सर लोग उसको हायर करते हैं, तो इस पे भी इथिकल डिबेट्स हैं। ART involve a serious stress on women bodies either for hyperovulation, for ovum donation, or when she carries someone else baby for 9 months as a surrogate mother। क्योंकि इस पे इथिकल डिबेट इसलिए हो रहा है कि अगर एक औरत जो है वो एग डोनेट करती है तो ऐसे में उसकी बॉडी को स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, या अगर वो 9 माह जेस्टेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो 9 मंथ के लिए अंडर स्ट्रेस रहती है। ठीक है, फिज़िकल स्ट्रेस में भी रहती है, और जब बच्चा पैदा होने के बाद वो सरेंडर करती है बच्चा किसी और के लिए, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी वो पास थ्रू होती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है लीगली और इथिकली अंडर कंट्रोवर्शियल डिबेट है। तो इसलिए अब इसकी एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अंडर डिस्कशन है। कुछ सोसाइटीज़ ने डिसाइड कर लिया है, कुछ सोसाइटीज़ अभी डिसाइड कर रही है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊं कि सरोगेसी का एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर केस है कि 2005 में एक फ़ॉरेन पाकिस्तानी निजात फ़ॉरनर थे जो बाहर सेटल थे, वो पाकिस्तान आए थे। उस आदमी का नाम फ़ारूक था। उन्होंने एक फ़रज़ाना नामी ख़ातून को हायर किया था जेस्टेशन के लिए, उसके साथ निकाह किया था और उसके एग जो थे वो एज अ डोनर उनसे एग लिए थे और फिर उसकी जेस्टेशनल सर्विसेज भी हायर की थी। तो जब फ़रज़ाना ने जेस्टेशनल सर्विसेज प्रोवाइड के बाद बच्चा पैदा हो गया तो फ़रज़ाना ने बच्चा देने से इनकार किया और फ़रज़ाना ने कोर्ट में केस किया। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये केस मुख्तलिफ़ सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में 7 साल चलता रहा। फिर आखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि बच्चा फ़रज़ाना का है, क्योंकि पाकिस्तान में सरोगेसी का कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये एक इंटरेस्टिंग केस था जो मैंने अपने व्यूवर के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। आई होप कि आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं सो यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@gmail.com। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर अमान's वीडियो एंड आल्सो हिट bell icon for the notification of upcoming videos and lectures. Thank you so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.